Hello everyone. Today we are going to revise chapter 3, the Indo-Gangetic Plain. ठीक है? The Indo-Gangetic Plain or the Northern Plain lies at the foothills of Himalayas. Where it lies? It lies at the foothills of Himalaya. It extends from Punjab in the west to the eastern state of Assam. It extends from Punjab in the west and eastern state of Assam. These plains are 2400 km long and are approximately 150 to 300 km wide. Length is 2400 km and wide 150 to 300 km. Three rivers originating in the Himalayas flow through them. Three rivers originate from Himalayas. Their names are Indus, which flows towards Pakistan. The Brahmaputra flows through eastern India into Bangladesh. The holiest rivers for Hindu, the Ganga, starts from the Himalayas and flows into the Bay of Bengal. First river, Indus, flows toward Pakistan. Second is Brahmaputra, flows through eastern India and into into Bangladesh. And the third one is Ganga, starts from Himalayas and flows into the Bay of Bengal. The Indus and Ganga river make the Indo-Gangetic Plain very fertile. ठीक है, ये दोनों रिवर मिलके इस जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको फर्टाइल बनाती हैं. The Ganga is 2500 km in length and is the longest river in India. Length is 2500 km and it is the longest river in India. These rivers are also known as perennial rivers as they have water throughout the year. So, what are perennial rivers? The rivers that have water throughout the year are called perennial rivers. Many important cities have come up alongside the banks of these rivers and their tributaries. बहुत सारी important cities हैं इन river के bank पे situated हैं या इनकी tributaries से पे situated हैं. As the land is flat, the northern plains have a good network of roadways and railways. क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट लैंड है जिसकी वजह से गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, अच्छा नेटवर्क है रेलवेज और रोडवेज का. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. These are the states that include the Indo-Gangetic Plains. The area is composed of fertile soil that is known as silt, which we called alluvium. ये एरिया में कौन सी सॉइल है? सिल्ट, alluvium soil. The rivers bring down the silt from the Himalayas. The Indo-Gangetic Plains can be divided into the three river basins. ये जो rivers हैं ये silt कहाँ से लेके आती हैं? हिमालय से. तो इन जो इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स को हम थ्री रिवर बेसिन्स में डिवाइड करेंगे. द गंगा बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द सतलुज बेसिन. द गंगा बेसिन. The Ganga originates in the Gangotri Glacier in the Himalayas as the Bhagirathi and Alaknanda. जो गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय से निकलती है, जैसे कि जहाँ पे उसे भगीरथी और अलकनंदा भी बोला जाता है. बोथ दीज रिवर्स मर्ज एट देवप्रयाग एंड फ्लो एज गंगा. ये दोनों रिवर्स हैं जो भगीरथी और अलकनंदा जब हिमालय से निकलती हैं तो आपस में मर्ज हो जाती हैं देवप्रयाग पे आके और गंगा के रूप में फ्लो करने लग जाती हैं. It enters the northern plains at Haridwar and flows through the Indian state of Uttarakhand, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. फिर ये नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार में और कहाँ बहती है? इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. ये चार स्टेट में जाके ये बहती है. The Yamuna, which is the most important tributary of the Ganga,
ट्राइब्यूटरी है गंगा की। ट्राइब्यूटरी क्या होता है? व्हाट इज अ ट्राइब्यूटरी? जब किसी मेन रिवर से कुछ और रिवर्स निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड ट्राइब्यूटरी। जॉइंस इट इन इलाहाबाद। जो गंगा है ये यमुना गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में, जो कि गंगा की एक मेन ट्राइब्यूटरी है। दिस मीटिंग पॉइंट नॉन एज द संगम हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इस जो मीटिंग पॉइंट है गंगा और यमुना का, जो इलाहाबाद में है, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? संगम, जिसकी अपनी एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। द कुंभ मेला इज हेल्ड हेयर वंस एवरी 12 ईयर्स। यहाँ पे हर 12 साल के बाद में कुंभ मेला भी लगता है। विच विटनेसेस द कमिंग टुगेदर ऑफ मिलियंस ऑफ पिलग्रिम टू इलाहाबाद। इसके यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इस कुंभ मेले की वजह से मतलब मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स, मतलब करोड़ों यात्री आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। द चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैन रिवर्स ज्वाइन द गंगा एज इट फ्लोज ईस्टवर्ड। यहाँ पे गंगा को कौन ज्वाइन करती हैं? चंबल, सिंध, बेटवा एंड कैन। जब ये ईस्टवर्ड को फ्लो करती है तो ये सारी रिवर इसको गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। द गंगा डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, हियर इज अ क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेल्टा? द गंगा डेल्टा इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। The Ganga basin is the most populated part of the country with many important cities. अब गंगा बेसिन सबसे पॉपुलेटेड पार्ट है बहुत सारी सिटीज के साथ, सच एस ऋषिकेश, हरिद्वार, न्यू दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता। सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। ये सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं इनके बैंक्स पे सिचुएटेड है। This basin is very fertile and is ideal for growing rice, wheat, sugarcane and jute. और ये जो गंगा बेसिन है बहुत फर्टाइल एरिया है, इसलिए यहाँ पे ये राइस, व्हीट और शुगर केन और जूट के लिए बहुत ही फर्टाइल है, आइडियल है। मैम, यस मैम, आई डोंट नो दिस चैप्टर। मैम, ये मैम जूट मीनिंग? यस, जूट बेटा, जूट होता है, एक ट्री होता है जिसे आपके जो भी पैकिंग की चीजें होती है ना, जूट के ट्रीज होते हैं, जो भी हम जिसको हम जूट के समझ लीजिए सैक्स बनती हैं, बोरियां बनती हैं जिसको आप बोलते हो। ठीक है, समवन हैज जॉइंड। अब डेल्टा क्या होता है यहाँ पे? अ ट्रायंगुलर ट्रैक्ट ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट एट द माउथ ऑफ ए रिवर। जो एक ट्रायंगुलर ट्रैक्ट होता है जहाँ पे रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट, जो अपने साथ चीजें बहा के लाती है ना, उनको डिपॉजिट कर देती है वहां पे, तो उस प्लेस को डेल्टा बोला जाता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज द त्सांगपो। अब यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तिब्बत, जहां पे इसको त्सांगपो बोला जाता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड टेक्स अ शार्प टर्न अराउंड नमचा बारवा पीक। ये ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है और वहां पे एक शार्प टर्न ले लेती है नमचा बारवा पीक, जो जिसकी हाइट है 7,756 मीटर। इट एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज नॉन एज देहांग। और इंडिया में ये कब एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश में, जहां पे इसको दिहांग बोला जाता है। व्हेन द दिहांग इज जॉइंड बाय द लोहित एंड दिबंग रिवर्स इट बिकम द ब्रह्मपुत्र। जब दिहांग को लोहित और दिबंग रिवर्स ज्वाइन करती हैं तो ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अब हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे मॉनसून सीजन पे ब्रह्मपुत्र बेसिन में। द रिवर कैरीज a huge volume of water as well as enormous amounts of silt within. तो रिवर अपने साथ बहुत पानी और उसके साथ साथ सिल्ट, ठीक है, जो कि फर्टाइल होती है बहुत की क्रॉप्स के लिए, विच इज एक्सीलेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज राइस एंड जूट। जो राइस और जूट के लिए बहुत एक्सीलेंट होती है, अपने साथ बहा के ले आती है। The name of river Brahmaputra when it flows through Bangladesh is Jamuna. It unites with Ganga and is known as Padma.
द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र व्हेन इट फ्लोज थ्रू बांग्लादेश इज जमुना. जब ये बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है तो इसका नेम क्या है? जमुना. और ये इट यूनाइट्स विद गंगा एंड इज नॉन एज पद्मा. जब ये गंगा के साथ जुड़ जाती है तब इसको पद्मा नाम से बोला जाता है. नाउ द सतलुज बेसिन. द सतलुज एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो थ्रू पंजाब एंड हरियाणा. सतलुज और इसकी ट्राइब्यूटरी जो इसके साथ और रिवर्स निकलती हैं, ये कहाँ फ्लो करती है? पंजाब और हरियाणा. सिंस द रीजन does not receive too much rainfall, farmers in the Satluj basin have to depend on the rivers. अब इन रीजन्स में बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको रिवर्स पे, कैनल्स और डैम्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. किस लिए? फॉर इरिगेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. क्योंकि बहुत क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होती है, अगर बारिश कम होगी तो सारी क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगी. इसलिए जो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको इन रिवर्स, कैनल्स और डैम पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है इरिगेशन के लिए. ये देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ डैम दैट इज बिल्ट ऑन द रिवर सतलुज. द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन्स आर शुगर केन, व्हीट, राइस एंड कॉटन. ये सारी मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो हो रही हैं. द रिवर्स ऑफ इंडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ द पीपल. जो रिवर्स हैं इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ के लोगों की लाइफ में. दे प्रोवाइड इरिगेशन, चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए, इरिगेशन भी हमारी रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी डिपेंडेंट है, और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे जो डैम्स पे है डिपेंडेंट. मोस्ट मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर. और यहाँ तक कि जो हमारी जो मेजर सिटीज हैं वो भी सारी इन रिवर बैंक्स पे लोकेट करती हैं. यहाँ पे देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ इंदिरा गांधी कैनल ऑन द सतलुज रिवर. ये इंदिरा गांधी कैनल है और वो भाखड़ा नंगल डैम है जो सतलुज रिवर पे बने हैं. Now we are doing the blanks of this chapter. Which river make the Indo-Gangetic plain fertile? Indus and Ganga. The rivers that flow throughout the year are called perennial. Yes, the Ganga originates from the Gangotri glaciers. The Bhagirathi and Alaknanda merge at Devprayag. The Brahmaputra is known as the Tsangpo in Tibet. Kumbh Mela is held once every 12 years at Allahabad. ठीक है? Yes. Kumbh Mela is held once every 12 years at Allahabad. A famous dam on the Satluj River is Bhakhra Nangal. Bhakhra Nangal. Yes. गंगा, उत्तराखंड, इंडस, कहाँ कहाँ ये रिवर फ्लो कर रही हैं? गैंग्स, उत्तराखंड, इंडस, पाकिस्तान, सतलुज, हरियाणा, ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश, एंड यमुना, न्यू दिल्ली. These are the places where these river flows. Where is the Indo-Gangetic plain located? These plain located in the foothills of Himalayas. Yes. What are the different names of the Brahmaputra as it flows through different places? Which river does it merge with? Yes. Yes. Here is the answer. The river Brahmaputra originates in Tibet, where it is known as the Tsangpo. It enters India in Arunachal Pradesh, where it is known as Dihang. And the name of Brahmaputra when it flows through Bangladesh is Jamuna. And it unites with Ganga and is known as Padma. This is the answer of 2. The next question is, what is alluvial soil where it is found? The alluvial is deposited by the state of where it is found? Punjab, Haryana, UP. Yes. Found in the state of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Where do the farmers in the Satluj basin get water for irrigation and why?
They get water from Indira Gandhi Canal because it help them for they use the water of this canal for irrigation and to cultivate their crops. Now our chapter is completed. Have you Yes, ma'am. understood? This chapter is clear to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Okay, Ma'am. beta. Ma'am. हाँ Excuse